So as you can see, this paper is for those who have taken up Hindi as language 2 only. Now, before you start, there's one thing I would like to tell you, and that is that since this paper was a physical paper, the same questions have been asked in English as language 2. So if you see the first question, you can see this in every question, but I will not show it to you for every question. So if you see the first question, 121 says, शिक्षार्थियों के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा शिक्षाई संसाधन नहीं है? And if I go to English as language 2, so this is question 121 in English, that is language 2. The same question has been asked. Which of the following is not a classroom resource for learners in the teaching learning of language? And the options are also the same. If you see out here, library, reading corner, classroom procedures, and word wall. Let us see what has been given in the Hindi question. So, Kaksha Pustakalay, that is library, Pathan Kona, reading corner, Kakshai Prakriyaएं, that is reading teaching process, and Shabd Divar, word wall. So do check whether the same questions are being asked, then you can very easily refer to the English if you've not understood any word. So let's begin. So the question is शिक्षार्थियों के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए, that is for language teaching and learning, कौन सा कक्षाई संसाधन नहीं है, that is a learning material. So Pustakalay, library is, reading corner is, word wall will be. So Kakshai Prakriya, these are the processes or the procedures. Ye nahi hai. So this will be the correct answer. I'll just move on quickly, but that was the tip I wanted to tell you. If you haven't understood, check whether the same questions have been asked. 122 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए. So अभिकथन and तर्क. भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्ति परक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए. व्यक्ति परक would be the individual plans, that is you teach everybody individually. The reason being, नई भाषाओं के अधिगम में शिक्षार्थियों में विविधता होती है. So there are individual differences is in students. So yes, this is true, A is true, but this is also true, but not the reason for this. So only vividta ke liye you don't make individual lesson plans. There are other reasons also, not only because of individual differences. Therefore the answer will be option 2. A और R दोनों सही हैं, परंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता है. 123 किस विधि में शिक्षार्थी के प्रथम भाषा शिक्षण का, द फर्स्ट लैंग्वेज, द मदर टंग में केंद्रीय भूमिका निभाती है? सो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि, दिस इज योर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग. कार्य आधारित, so task based, and pratyaksh or the direct method. So in all three of these, the first language is not used, but in the grammar translation method, which is Vyakaran Anuvad Vidhi, your mother tongue is used. So the correct answer would be Vyakaran Anuvad Vidhi. 124 चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी है. वह तमिलनाडु गया और वो भोजपुरी नहीं बोलता है और अपने साथियों से केवल अंग्रेजी में ही बोलता है. जब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा की स्थान लेता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? So this is called subtractive bilingualism in English, which out here is ऋणात्मक द्विभाषावाद. So please remember, code mixing, code switching नहीं हुआ है. There is no code switching and code mixing. He is not mixing two languages, and this is not just plain bilingualism. This in English is known as subtractive. That means another language takes the place of the first language. He gives up Bhojpuri and goes on to English. Subtractive bilingualism. Again, the same question has been asked in English. I'll go to 124 in English. Same question. Chetan's first language was Bhojpuri. Since arriving in Tamil Nadu, he no longer speaks Bhojpuri. And it is subtractive bilingualism. Let's get back. 125 निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व, that is प्री रीडिंग गतिविधि को समर्थित करता है? शिक्षार्थी को कार्य का सारांशीकरण, समराइजेशन. So summarization will have after you read. अनुमान लगाने से संबंधित कार्य का प्रयोग, this should be the answer. व्याकरणिक
संरचनाओं की शिक्षण, so something to do with grammar, making in grammar, and भाव अनुवाद संबंधी, so understanding the abstract or the central theme. So these will all happen after reading, but अनुमान लगाने, inference, predicting, all that will happen before reading. 126 उपचारात्मक शिक्षण, that is your remedial teaching, उपचार करना के बारे में कौन सा सही है? प्रदर्शन या उपलब्धि सुधार हेतु मदद, so this is very broad, let's keep this in mind. पिछड़े विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति दर्शाना, तो सहानुभूति नहीं दर्शाएंगे हम लोग, उपलब्धि में सुधार हेतु अतिरिक्त अंक देना, तो अंक नहीं देंगे. मेधावी बच्चों को अतिरिक्त ध्यान देना, so this is not correct, so this will be the correct answer. उपलब्धि सुधार हेतु मदद देना, so you want improvement, so the other options are not so good. This is a very general answer, but this is the best answer. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प. Another assertion and reason. अंग्रेजी भारत में एक सह राजकीय भाषा है. It is the associate official language of India, so this is correct. भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी को विदेशी भाषा की तरह पढ़ाया जाता है. So नहीं अंग्रेजी is not a foreign language in India, so A सही है, R गलत है. This will be the correct answer. 128 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है? सांकेतिक है, that it is a symbolic, which is true. स्थिर है, which is static, so this is not true. सामाजिक है, it is social in nature, yes, and it is व्यवस्थित, that is it is systematic, that is also true. So भाषा स्थिर है नहीं है, भाषा is not static, it is a dynamic in nature. 129 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए. अगेन assertion and reason, you don't have to read the entire thing. पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना महत्वपूर्ण है. So it is yes important to प्रत्यास्मरण is to remember, remember. Smaran is remember, so reinforcement kind of a thing. So children do need some kind of a sanket. Out here won't be a symbol. Sanket here would be a hint. So this is true. पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण से विद्यार्थी को जानी गई भाषा से नई भाषा में संबद्धता स्थापित करने में मदद मिलती है. That is true. So if he knows what you are doing, you can figure out the difference between what is the new language teaching you. So A और R दोनों सही है और R A की पुष्टि करता है. 130 कक्षा 8 की अध्यापिका ने विद्यार्थियों को प्रदत्त कार्य इज योर होमवर्क के रूप में घर में ऊर्जा बचत से संबंधित एक लीफलेट बनाने के लिए कहा. ये कार्य भाषा की किस विशेषता को पोषित करता है? So what kind of a work is this? प्रश्न स्वरूप is going to be questioning. No. सकारात्मक आदेश सूचक. So I looked it up in the English paper. It's basically called positive imperativism, which I am not sure what kind of a work this is. If anybody knows, please put it in the comments below. Tulnatmak is what is being done. So what the teacher wants basically is that you find out about Urja Bachat, that is energy saving, and make a leaflet as to what you're doing at home. So he is going to be comparing that this is the best way, and this is what I do at home, and this is maybe what you should do. So some kind of a comparison is happening, and Tulnatmak would be the correct answer. Comparison is happening. एक पाठ योजना, तो पाठ योजना इज योर लेसन प्लान. बनाते समय उसका उद्देश्य निश्चित किया गया कि दिस इज ऑब्जेक्टिव, विद्यार्थी को ये सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी संप्रेषण कैसे किया जाए. हाउ टू हैव अ पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट बिजनेस रिलेटेड कम्युनिकेशन. ये उद्देश्य नीचे दी गई किस विधा से मेल खाता है. So if it's a business communication, does the person grahak ke saath, so what would report grahak will not see, description will not do, the articles you will not write. Patra would be the best option, so because that is the most common way to deal with any customer.
एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को एक चित्र में 4 वाद्य यंत्र देखने के लिए कहा, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आगे ये कहा कि आपस में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोह में इनका क्या प्रयोग हो सकता है, हाउ कैन यू यूज इट इन डिफरेंट संगीत समारोह। उस संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए जो इस गतिविधि से मेल खाता है। विश्लेषण करना, सो बेसिकली दे आर yes describing something. Srijit, no, they are not creating, they are not reasoning, or they are not imagining. So विश्लेषण करना और description would be the best answer. 133, जब एकल भाषी वक्ता will be a monolinguistic person. एक समान बोले गए या हाव भाव वाले विचार के भीतर वाक्य की औपचारिक से अनौपचारिक, सो फ्रॉम ऑफिशियल टू अनऑफिशियल सिचुएशन में जाते हैं, तो वो किस में संलग्न है, व्हाट आर दे एंगेज्ड इन। सो कोड मिश्रण और कोड परिवर्तन तो होगा ही नहीं, बिकॉज एनीथिंग टू डू विद कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग विल बी two languages. Dialects, no, it's just going from one situation to another. So he is using sociolinguistics, that is सामाजिक भाषा विज्ञान, which basically means that किस समाज में कैसे बात करना है, this person knows. So when he is in an official place situation, he will speak in a particular manner. When he is in an unofficial situation, he will just speak in a different manner. So that is sociolinguistics और सामाजिक भाषा विज्ञान। 134, बच्चों के अपने समुदाय में दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रिया, इनफॉर्मल इंटरेक्शंस। मित्रता और संबंध बनाना भाषा के किस स्वरूप का प्रयोग है? सो दिस इज भाषा समाजीकरण। अनुकूलन इज इमिटेशन, आत्मसात्करण, assimilation. So assimilation and enculturation will not happen out here. Assimilation is when you assimilate yourself with you go to a new place and you assimilate there, and culture is when you take on the culture. So this is, we are talking about very different concepts out here. Samajikaran will be socialization, so he is using the language in a social manner. This is bhasha samajikaran. 135, शब्दावली के प्रयोग के संबंध में, शब्दावली is your vocabulary. व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करता है? So use of vocabulary, how does it help in grammar? शब्दकोशीय बिंदु को अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति में जोड़ पाना. Okay, let's keep this an option. Let's see the other options. सुनी गई बातों को मौखिक रूप से कह पाना. So no, this is not not the words which you have listened to and made it just speak about it. उच्चतर कक्षाओं में औपचारिक लेखन के प्रारूप में, so that's not what your vocabulary does. औपचारिक स्थितियों में, फॉर्मल सिचुएशन में बृहत्तर सटीकता और विश्वास के साथ बात करना. So that will not be the correct option. Would be, I guess, not I guess, this is out of all the 4. शब्दकोशीय बिंदुओं को अर्थपूर्ण, so you want meaning and you want communication, expression, अभिव्यक्त करना में जोड़ पाना. So communicative expression. So with that we finish with the pedagogy. The next would be the comprehension. So since most of my students are not good with Hindi, let me just read out the passages. I will be reading this out so that you can understand what has been written. Now, my suggestion, and this is what I will follow now also, is that first you go and see the questions. I'll just go through the questions a little slowly because I'm recording this. But before I would start my comprehension, I would actually just go through the questions and see what is it that I need to read about. So the first line is, दिन भर हमारा प्राण गहरे से बहना चाहता है. So this passage is something about प्राण or life शक्ति. Let me go to question 136. प्राण dash से बहना चाहता है. So this we've got anyway. ऊर्जावान, शक्तिवान और शांत स्वभाव. So I'll remember this. So I have to read the passage for this. यदि प्राण वायु व्यवस्थित रूप से बहता है तो क्या नहीं होगा? Okay. विशेषण शब्द क्या है? ये तो हम लोग अभी कर सकते हैं. So धैर्य, मन, शांत and घबराहट विशेषण we want an adjective. So शांत is an adjective. धैर्य, मन and घबराहट are all nouns. So this is done. सुनिश्चित में उपसर्ग और मूल शब्द क्या है? So this is सु प्लस निश्चित. दो तो questions हो ही गए हैं. We just have to do 3 more. Let's see
द फर्स्ट क्वेश्चन, प्राण डैश से बहना चाहता है एंड ऊर्जावान, शक्तिवान और शांत स्वभाव का बनने के लिए क्या आवश्यक है? सो लेट्स रीड द पैसेज नाउ। तो दिन भर हमारा प्राण गहराई से बहना चाहता है, सो वी हैव गॉट आवर फर्स्ट आंसर व्हिच इज गहराई। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन। यदि पेट के नीचे कंध स्थान से प्राण का बहना सुनिश्चित कर दिया जाए, यू कैन ब्रीथ फ्रॉम योर स्टमक, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, लेकिन अधिकतर हमारा प्राण छाती से शुरू करके छोटी सी यात्रा करके रह जाता है, उसका गहरे से बहना नहीं हो पाता है। सो अगेन वी वांट गहराई से बहना। यदि हम दिन में जब भी याद आए तभी अपने प्राण को धीमा और गहरा भरना शुरू करें, तो खुद को ऊर्जावान, प्राणवान, शक्तिवान, सो दिस इज द सेकंड आंसर, और शांत स्वभाव का अनुभव करेंगे। हमारे भीतर धैर्य और रचनात्मकता बढ़ने लगेगी। सो दिस इज व्हाट विल हैपन। मन का तनाव समाप्त हो जाएगा। सो धैर्य, रचनात्मकता एंड तनाव, भय, घबराहट से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही ये अभ्यास ध्यान की गहराइयों में ले जाने में भी सहायक होगा। सो लेट्स सी, प्राण कैसे बहना चाहिए? तो गहराई से बहना चाहिए। ऊर्जावान, शक्तिवान और शांत स्वभाव का बनने के लिए क्या आवश्यक है? सो प्राण का धीमा और नीचे नहीं, प्राण वायु को गहराई और देर तक, एंड धीमा और गहराई से बहना। दिस वी हैव सीन आउट हियर। धीमा और गहरा। 138, यदि प्राण वायु व्यवस्थित रूप में बहता है तो क्या नहीं होगा? भय से मुक्ति मिल जाएगी, हो जाएगा। रचनात्मकता का विकास होगा, यस। घबराहट में वृद्धि होगा, ये तो आई थिंक वी डिडंट इवन हैव टू रीड। तो मन का तनाव दूर होगा इसका। प्राणवायु का गहराई और धीमी गति से डैश में अभ्यास करता है, अभ्यास मुक्त होने में नहीं, ध्यान लगाने में यस, इच्छाएं पूर्ण करने में this has not been mentioned, व्यापार has not been mentioned. So, and मानव जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो प्राण वायु सर्व है। So with this we finish comprehension 1. Let's move on to the next comprehension. तरह तरह के बदलाव हुए मशीनों के आने से, so this is something to do with machine. Let's first go on to the questions. कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण डैश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। युवा विद्यार्थी गद्यांश के अनुसार शिक्षक वर्ग कृत्रिम बुद्धिमत्ता से, so we'll have to come down. Here's 150. I think it's best to start with the last ones only. इत प्रत्यय का उदाहरण वाला शब्द प्रभावित, ये तो पहला वाला ही हो गया। उपस्थित, नो, प्रत्येक, निश्चिंत। समूह से भिन्न शब्द, मेधा, एक्सपर्ट, चैट जीपीटी, एग्जाम। Seems like मेधा, but I'll come back to this. कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रभावित होने वाला तत्व नहीं है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता we'll have to read the passage. So let me read the passage. तरह तरह के बदलाव हुए मशीन के आने से। हमारी पीढ़ी ने तो मशीन को इंसान से कंप्यूटर के हवाले होते देखा है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। आग की खोज ने जिंदगी बदल दी, तो पहिए के आविष्कार ने सभ्यताओं को जन्म दिया, और चैट जीपीटी, ओके, और पॉड जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ओके, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई आधारित प्लेटफॉर्म आए हैं, तो हाहाकार मच। समझना इतना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच में सबसे बड़ा फर्क मानवता का है। एआई आने वाले वक्त में जो भी करने वाला है वो आज के इंसान की सोच का प्रतिबिंब ही होगा। ऐसी आकांक्षाएं, दैट इज सच थिंग्स, कि व्हाइट कॉलर जॉब यानी इंजीनियर, आईएएस, डॉक्टर, वकील, डिजाइनर और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स की दुनिया सिमटने वाली है। स्कूल, कॉलेज, एग्जाम, पर्चे, कोचिंग, ओके, दिस इज वेयर दैट क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम। अस्पताल, लैब और तकनीक से जुड़े हुए सबके तबके पर असर पड़ने वाला है। ओके, दुनिया भर में करीब 30 करोड़ लोगों की जॉब इससे प्रभावित होने वाली है। चैट जीपीटी और इस जैसे दूसरे एआई प्लेटफॉर्म की खासियत यह है कि आपके हर सवाल का जवाब ये सेकंडों में दे सकते हैं। युवा विद्यार्थी ने पढ़ाई में एआई की मदद लेनी शुरू कर दी है। भविष्य की चिंताओं से जुड़े सबसे बड़े सवाल यही से पैदा होते हैं, नजर आ रहे हैं।
आखिर मेधा और मेधावियों को तय करने वाले इम्तिहान कब ऐसे होंगे? क्या शिक्षकों का ज्ञान एआई का मुकाबला कर पाएगा? ओके। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण डैश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सो तकनीक तो बढ़ेगा, कंप्यूटर विकास नहीं। मेधा पर, बिकॉज मेधा इज इंटेलिजेंस। युवा विद्यार्थियों ने पढ़ाई में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सहयोग लेना शुरू कर दिया है। इसका कारण क्या नहीं है? ये समय से अधिक ज्ञान मिलता है, कम समय में अधिक ज्ञान मिलता है। यस ट्रू, सेकंडों में मिल जाता है। हर सवाल का जवाब मिलता है, करेक्ट। उसमें शिक्षक से अधिक संवेदनाएं हैं। संवेदना इज एम्पथी, सो ये तो नहीं है। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सवालों के जवाब बहुत जल्द मिल जाते, सो दैट इज व्हाई दे हैव स्टार्टेड यूजिंग एआई। 145 गद्यांश के अनुसार शिक्षक वर्ग कृत्रिम बुद्धिमत्ता से मानवीय गुणों में पिछड़ा हुआ है। प्रतिस्पर्धा इस कंपटीशन नहीं कर पाएगा, अधिक कर पाएगा। अधिक ज्ञानी व मशीनी है, नो, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा, बिकॉज द लास्ट लाइन सेज कि वो पिछड़ जाएगा। 146 गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता लोगों को रोजगार दिलवाएगी, नो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मनुष्य जीवन सुधर गया है, वी कांट से दैट। कृत्रिम बुद्धिमत्ता भविष्य में मेधा को बढ़ावा देगा, नो। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज एआई के कारण मानवीय संवेदनाएं प्रभावित होंगी। गद्यांश के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्या नहीं है? ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड कृत्रिम बुद्धिमत्ता में डिफरेंस मानवता का है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रभावित होने वाला तत्व नहीं है। नौकरी हो जाएगा, चैट जीपीटी नहीं होगा। तो डिजाइनर्स, अस्पताल, हॉस्पिटल्स, मेंशन डॉक्टर वॉक्टर, ऑल दैट विल हैपन। चैट जीपीटी नहीं होगा। समूह से भिन्न शब्द, सो यहाँ पे इट विल बी मेधा, बिकॉज एक्सपर्ट्स, चैट जीपीटी एंड एग्जाम्स, they are all related to what AI is doing. And 150 we have done.